Hi, this is Bhaushan Mukherjee and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. In my previous video, we have discussed the primary distance protection of EHV line. EHV transmission line का जो primary distance protection होता है, that is zone 1, zone 2, zone 3 and reverse zone. That is R4 or reverse zone protection. In my previous video, I have discussed all these things. Just I am giving a recap on that. And today, I will discuss the line differential protection with backup distance protection. Regarding my previous video, just I am giving a recap on that. Suppose here is 4 substation A, B, C, D, and there is breaker 1 and 2 in between substation A and B. Similarly, between B and C, there is breaker 3 and 4. Similarly, between C and D substation, there is circuit breaker 5 and 6. Now, if there is any fault between A and B दोनों सबस्टेशन का बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कोई भी जगह में फॉल्ट होता है, suppose here is one fault, then circuit breaker 1 and circuit breaker 2 both should be tripped. Similarly, if there is any fault between substation B and substation C, then circuit breaker 3 and circuit breaker 4 should be tripped. In any technical reason, suppose circuit breaker 3 has not been tripped, then circuit breaker 1 should be tripped with some time delay. Similarly, if there is any fault between C and D substation, then circuit breaker 5 and circuit breaker 6 both should be tripped. If any technical reason, if 5 has not been tripped, then 3 should be tripped with some time delay. And in case of worst scenario, if 3 also has not been tripped, then circuit breaker 1 should be tripped with some time delay. And what are the zone wise distance? What will be the zone wise distance? Zone 1 का क्या distance होना चाहिए? जोन 2 का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, जोन 3 का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, इसका टाइम डिले कितना होना चाहिए, दैट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. You may see from the below table also. Now, suppose there is a transmission line fault between substation A and B. Suppose there is a fault in this position, and substation B distance relay has sensed, recognized the fault, and accordingly the substation B breaker, that is breaker number 2, has been tripped. Then, as per technical requirement, substation A का जो breaker है, breaker number 1 has to be tripped. This is the technical requirement. The both side of the line breaker has to be tripped. But substation A का जो distance relay है, that has not been sensed that fault. But only substation B का जो relay है, fault को sense किया है. Substation B का जो breaker है, breaker number 2 को trip कर दिया. But substation A का breaker का जो relay है, sense नहीं किया. And substation A का जो breaker, that is breaker number 1 has trip नहीं किया. But as per technical requirement, A should be tripped. Then what will be the backup protection? The backup protection is GSSB will send tripping command to this breaker through PLCC. टेली प्रोटेक्शन का काम यही है, लाइन का कोई भी एंड का कोई भी रिले सेंस करेगा तो दूसरा एंड का भी ब्रेकर को टिप करेगा. बोथ एंड का ब्रेकर शुड बी ट्रिप. तो कैसे होता है? तो सपोज दिस इज द PLCC ऑफ सबस्टेशन A एंड दिस इज द PLCC ऑफ सबस्टेशन B. तो PLCC का प्राइमरी काम क्या है? द प्राइमरी काम है टू सेंड द डाटा एंड टू सेंड द स्पीच. मतलब एक सबस्टेशन के साथ दूसरा सबस्टेशन का जो टेलीफोनिक होता है, टेलीफोन कन्वर्सेशन, एंड एक सबस्टेशन के साथ दूसरा सबस्टेशन का तीसरा सबस्टेशन, मतलब ग्रिड सबस्टेशन के अंदर, आई मीन इंट्रा सबस्टेशन के अंदर स्पीच कन्वर्सेशन, मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड डाटा ट्रांसफर. द प्राइमरी काम इज डन बाय द PLCC एंड इट हैज बीन डन बाय द PLCC कैरियर सेट. यानी जो PLCC कैरियर सेट है, एक कैरियर सेट के साथ और एक एडिशनल कार्ड लगा देता हूं. दैट्स कॉल्ड द प्रोटेक्शन कबलर, PLCC प्रोटेक्शन कबलर. इसी PLCC का जो है कैरियर सेट के साथ एक प्रोटेक्शन कबलर का कार्ड, डिजिटल कार्ड बाय एनालॉग कार्ड लगा देता हूं. सिमिलरली सबस्टेशन B का जो PLCC है उससे कैरियर सेट के साथ भी एक प्रोटेक्शन कबलर लगा देता हूं. सपोज सबस्टेशन A में जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन लगा हुआ है, दैट इज M1, 21 M1. Suppose this relay has been connected here. Similarly, substation B में भी इधर जो एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन लगा हुआ है वो भी 21 M1. ये जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है, जब कोई फॉल्ट सेंस करता है, ये तुरंत ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा ट्रिप करने के लिए. सिमिलरली इसका पैरेलल और एक कमांड भेजेगा PLCC प्रोटेक्शन कबलर को, जो दूसरा एंड को सिग्नल भेजेगा ट्रिपिंग कमांड. सो दिस रिले जनरेट two tripping command. One is for the self substation breaker to trip the breaker, and second one is to the PLCC protection coupler. तो वो बोलता है कि दूसरा सबस्टेशन एंड का PLCC को भेजो, तुरंत उसको ट्रिप करेगा.
तो इस साइड का जो पीएलसीसी का प्रोटेक्शन कपलर जब ट्रिप कमांड रिसीव करता है, ये तुरंत पीएलसीसी का थ्रू दूसरा सबस्टेशन में पीएलसीसी को कमांड देता है कि तुम्हारा इनमें जो लाइन का ब्रेकर है, ब्रेकर को टिप कराओ। तुरंत पीएलसीसी प्रोटेक्शन कपलर को कमांड पास करता है एंड प्रोटेक्शन कपलर रिले को कमांड पास करता है एंड रिले तुरंत इनिशिएट होता है एंड ब्रेकर को टिप कराता है। सो इन दिस वे थ्रू पीएलसीसी कोई भी एक साइड का ब्रेकर टिप होता है तो दूसरा एंड का भी ब्रेकर थ्रू पीएलसीसी टिप कराया जाता है। दैट इज द टेली प्रोटेक्शन सिस्टम थ्रू पीएलसीसी। नाउ सी, इस एंड में भी एक तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है, इस एंड में भी एक तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है। सपोज कोई भी एंड का डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले एक तो खराब हो गया, तो जब एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन खराब हो जाएगा, एक साइड ट्रिप कर पाएगा, दूसरा साइड ट्रिप नहीं कर पाएगा। बोथ डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले खराब हो गया तो उस टाइम में डिस्टेंस प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। तो इसका एक्यूरेसी को, इसका रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करता हूं, ईच एंड में दो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगाता हूं। एवरी साइड दो प्रोटेक्शन रिले लगाता हूं। सपोज दिस रिले इज 21 m1, तो और एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगाता हूं, दैट इज 21 m2। 21 is the ANSI code of distance protection relay and M1 is the main one, M2 is the second one for backup protection. By chance M1 खराब हो गया तो M2 will give the backup protection. Similarly, B substation का में भी 21 M1 is for the primary protection and for backup protection 21 M2. So both end में दो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगा दिया, तो कोई भी सबस्टेशन का कोई भी एक रिले खराब हो गया तो दूसरा रिले उससे काम करेगा, तो इससे सिस्टम का रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा एंड बोथ रिले को आप पीएलसीसी का थ्रू कनेक्ट कर सकता है, भेज सकता है। तो क्या होगा, डबल डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले लगाने में सिस्टम का रिलायबिलिटी बढ़ गया। एंड इसमें हम लोग ये लॉजिक यूज करता हूं, सपोज ये जी मेक का माइकम लगाया तो मैं कोई दूसरा मेक का दूसरा रिले है, मैं कोई दूसरा मेक दूसरा मॉडल लगाऊंगा। सपोज दिस इज जी मेक माइकम रिले लगाया तो मैं दूसरा रिले जो है आइदर सिप्रोटेक বা एबीबी का आरईएल 670 व्हाटएवर इज द मॉडल वो लगाऊंगा। सिमिलरली इस एंड में भी जो प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए जो मेक लगाऊंगा, सेकंड बैकअप प्रोटेक्शन के लिए दूसरा मेक लगाऊंगा फॉर मोर रिलायबिलिटी एंड बोथ एंड्स विल बी कनेक्टेड विद पीएलसीसी फॉर टेली प्रोटेक्शन। नाउ दो रिले तो लगा दिया हो, तो रिले का जो फेलियर था उससे हम लोग बच गया, लेकिन हमारा जो कमांड जो सेंड करता हूं वो तो हम लोग एक ही वे में सेंड कर रहा हूं थ्रू पीएलसीसी। तो सपोज कोई पीएलसीसी खराब हो गया तो भी काम नहीं करेगा, हमारे दो रिले लगाने के बाद भी फायदा नहीं होगा। पीएलसीसी खराब है तो टेली प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करता हूं, जो हमारा फर्स्ट रिले को हम लोग लगा रहा हूं पीएलसीसी के बाद, सेकंड रिले को हम लोग लगा देता हूं जिस लाइन में ओपीडब्ल्यू है थ्रू ओपीडब्ल्यू। हर सबस्टेशन में द मॉडर्न ट्रांसमिशन लाइन, आजकल जो भी ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके 8 तार को हम लोग चेंज कर दिया ओपीडब्ल्यू में, ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड है। तो ऑप्टिकल फाइबर का थ्रू हम लोग डाटा कैरियर एंड टेलीपोर्टेशन भी कर सकता हूं एंड हम लोग ग्राउंडिंग वायर का हिसाब से भी काम कर सकता हूं। सो टू एनहेंस द मोर रिलायबिलिटी 21 M1 is connected to PLCC and 22 M2 should be connected with OPGW. Similarly, this and maybe 21 M2 should be connected with OPGW. Now OPGW केबल में जो डाटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर माध्यम जो होता है ऑप्टिक होता है, ऑप्टिक्स फाइबर। इट्स मीन सबस्टेशन का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। I will have to convert the electrical signal to optical signal. तो इसको चेंज, तो इसको डायरेक्ट में जोड़ नहीं सकता हूं, तो इसको चेंज करने के लिए इसका मिडिल में हमको कन्वर्ट करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसका कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मिडिल में एक पैनल लगाता हूं, इधर भी एक पैनल, इधर भी एक पैनल। ये पैनल क्या बोलता है, इसको बोलता है फोटे पैनल बा एसडीएच पैनल। फोटे पैनल बा एसडीएच पैनल। फोटे मतलब फाइबर ऑप्टिकल टेली इक्विपमेंट, फोटे मीन फाइबर ऑप्टिकल टेली इक्विपमेंट, मतलब दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल बा लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू पुट टू पैनल्स, दैट्स कॉल्ड द टेली प्रोटेक्शन पैनल बा फोटे पैनल। तो फोटे पैनल क्या है, जैसे कैरियर सेट था पीएलसीसी का, तो फोटे पैनल इज सेम। कैरियर सेट पीएलसीसी का क्या कर रहा था, पीएलसीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, व्हेयरएज फोटे पैनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल व लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। देयर इज द मेन डिफरेंस इज टू। नाउ जो ट्रिपिंग कमांड आएगा
ये ट्रिपिंग कमांड को पास करने के लिए जैसे हम लोग पीएलसी में एक प्रोटेक्शन काबलर लगा रहा था, ऐसे हम लोग को भी एक प्रोटेक्शन काबलर लगाना पड़ेगा। इधर भी एक प्रोटेक्शन काबलर, इधर भी एक प्रोटेक्शन काबलर। दिस प्रोटेक्शन काबलर का नेम है डीटीपीसी, डीटीपीसी, डिजिटल टेली प्रोटेक्शन काबलर, डिजिटल टेली प्रोटेक्शन काबलर। तो पहले रिले का जो कमांड है, रिले का जो ट्रिपिंग आउटपुट का कमांड है वो आएगा डीटीपीसी में, रिले से थ्रू कॉपर वेव आएगा डीटीपीसी में। फिर डीटीपीसी और कमांड को ऑप्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके फोटो पैनल को दे देगा। फोटो पैनल विल सेंड थ्रू पीडब्ल्यू टू दूसरा सबस्टेशन, दूसरा सबस्टेशन उसी कमांड को रिसीव करेगा थ्रू ऑप्टिकल माध्यम में। वो फिर इधर का जो डीटीपीसी है वो डीटीपीसी ऑप्टिकल सिग्नल को फिर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड कमांड भेजेगा इस साइड। सो फॉर पीएलसी में हम लोग यूज कर रहा था कैरियर सेट एंड प्रोटेक्शन काबलर। सिमिलरली हम लोग थ्रू ओपीडब्ल्यू का भी जो प्रोटेक्शन करूंगा, वी हैव यूज्ड फोटो पैनल एंड डीटीपीसी। द फोटो पैनल विल एक्ट एज अ कैरियर सेट एंड डीटीपीसी इज द डिजिटल टेली प्रोटेक्शन काबलर। सो सिस्टम में दो रिले लग गया, फॉल्ट पास करने का जो माध्यम है वो भी डबल हो गया, एक पीएलसी का थ्रू, एक फोटो पैनल ओपीडब्ल्यू का थ्रू। कोई भी एक खराब होगा तो दूसरा से होगा। सपोज ओपीडब्ल्यू काम नहीं कर रहा है तो थ्रू पीएलसी काम करेगा, पीएलसी नहीं काम कर रहा है तो ओपीडब्ल्यू काम करेगा। बट बोथ वर्किंग ऑन डिस्टेंस रिले प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। फॉर ओपीडब्ल्यू में भी पीएलसी में भी माध्यम अलग अलग है, बट वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम। बोथ साइड बोथ आर डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, बोथ आर वर्किंग ऑन डिस्टेंस प्रोटेक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। बाय इंपीडेंस रिले का जो वर्किंग प्रिंसिपल उसी में। तो सिस्टम का रिलायबिलिटी को मैं और भी एनहेंस करता जा रहा हूं। मतलब एक में डिस्टेंस रिले यूज करूंगा और एक में दूसरा रिले यूज कर दूंगा। मतलब एक डिस्टेंस रिले यूज होगा और एक मैं चाह रहा हूं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले यूज करूंगा। तो एक यूज करूंगा डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले और अनदर यूज करूंगा मैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन का रिले का वजह से लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन विद बैकअप प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टेंस रिले। बैकअप डिस्टेंस प्रोटेक्शन का बैकअप रहेगा, बट प्रिंसिपली जो सेकेंड रिले है तो सेकेंड रिले का प्रिंसिपली रहेगा डिफरेंशियल लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। 21 M2 जो है उसमें इंस्टेड ऑफ ओनली डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले विल चेंज दिस रिले टू लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन विथ बैकअप डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो बोथ एंड में जब 21 M2 को मैं यूज करूंगा लाइन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन विद बैकअप डिस्टेंस प्रोटेक्शन, उसका प्रिलिमिनरी वर्किंग प्रिंसिपल होगा द वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिले वर्किंग प्रिंसिपल। तो डिफरेंशियल रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इस साइड का भी करंट मेजर करेगा, इस साइड का भी करंट मेजर करता है। दोनों साइड का करंट का कोई भी डिफरेंस होगा देन इसके ब्रेकर भी ट्रिप करेगा, इस ब्रेकर भी ट्रिप करेगा। तो ये क्या करेगा? इस साइड का जो सिटी है, इस साइड का जो सिटी है, ये दोनों सिटी से इस रिले में वायर आएगा, दोनों सिटी से इस वायर में आएगा। उसके बाद रिले क्या करेगा? ये जो सिटी का जो करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट का जो सिग्नल है, करंट का जो इमेज है, बेटा टू से करंट का जो इमेज है, करंट का इमेज वो फिर फोटो पैनल को भेजेगा। सिमिलरली ये रिले भी करंट का जो इमेज है, इसी एंड का जो करंट का इमेज है वो को भी फोटो पैनल का भेजेगा। इसमें भी हमको सेम प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। करंट का जो इमेज है उसको हमको ऑप्टिकल एनर्जी में डाइवर्ट करना पड़ेगा। आई मीन इलेक्ट्रिकल का इमेज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर ऑप्टिकल एनर्जी में डाइवर्ट करना पड़ेगा। बट दिस डीटीपीसी कैन डू दिस। ये डीटीपीसी ओनली ट्रिपलिंग कमांड को पास करेगा, बट करंट को इमेज को कर नहीं पाएगा। सिमिलरली इस एंड में भी ये जो करंट का जो इमेज है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है, करंट का जो साइनसॉइडल सिग्नल है, ये साइनसॉइडल सिग्नल को ऑप्टिकल एनर्जी में डाइवर्ट करके फोटो पैनल में ये डीटीपीसी पैनल कैन डू दिस। तो इसके लिए अनदर एक तो कार्ड लगाना पड़ता है, दैट्स नेम इज C37.94। एक एडिशनल कार्ड, ये फोटो पैनल का जो कार्ड है, कार्ड के साथ हमको एडिशनल लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। तो दिस एडिशनल कार्ड आपको फोटो पैनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू OFC केबल एंड रिले से थ्रू कॉपर वायर एक कार्ड में लेके आना पड़ेगा। सिमिलरली इस एंड में भी एक तो C37.94 जो कार्ड है, हमको ये रिले से कॉपर वायर का थ्रू कार्ड में लेकर आना पड़ेगा, कार्ड से फोटो पैनल में थ्रू एफओ केबल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दोनों एंड में करंट का जो इमेज है, करंट को हमारे इमेज को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा टू सेंड OPW 337.94 जो कार्ड है, 337.94 कार्ड। नाउ इसमें एक मजा है। क्या मजा है?
एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले का केस में मैं कोई भी एम में कोई भी मेक का रिले यूज करता हूँ, इसमें जी का माइकम यूज करता हूँ, इसमें सीमेंस का सिप्रोटेक यूज कर सकता हूँ, इसमें एबीबी का आरएल 670 यूज कर सकता हूँ, कोई भी एम में कोई भी रिले यूज करता हूँ. But in case of line differential protection, we will have to use the same make and model in both number. Same make and model in both end. I am repeating again, for line differential protection, we will have to use the same make and same model relay in both end of the substation. Otherwise, it will not work. क्यों? Why? Because इसमें हम लोग ट्रिपिंग कमांड भेज रहा था. फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन वी आर ओनली सेंडिंग द ट्रिपिंग कमांड. इन केस ऑफ डिफरेंशियल लाइन डिफरेंशियल वी विल हैव टू सेंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट. एवरी सेकंड का जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड का हमको सेंड करना पड़ेगा. दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी डिफरेंस हो जाएगा तो ये रिले ट्रिप करेगा. नाउ सी, सपोज दिस एनवे में माइकम का लगा दिया, जी का लगा दिया, दिस एनवे में सीमेंस का लगा दिया. दोनों का जो पाल्स भेजने का जो रेट है, दोनों का पाल्स भेजने का रेट अलग होगा. ये मे बी मिनट में 32 पाल्स भेजेगा तो मे बी ये मिनट में 20 पाल्स भेजेगा. तो ये मिनट में 30 पाल्स भेज रहा है और 20 पाल्स भेज रहा है तो सेम टाइम में पाल्स का डिफरेंट हो जाएगा. आई मीन सपोज दिस एन का सिटी से रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन के बाद सपोज दिस सिटी का जो साइनोसॉइडल वेव है दिस, तो सिमिलरली उसी टाइम का इसी का जो साइनोसॉइडल वेव होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए फॉर नॉर्मल कंडीशन. तो अब ना जाके इसका आई डिफरेंस विल बी जीरो, दोनों में आई डिफरेंस विल बी तब जीरो. तो एक पार्ट इसका सेंडिंग का पाल्स रेट और इसका सेंडिंग का पाल्स रेट अलग अलग होगा तो क्या होगा, ऐसे चलते रहेगा. सो देयर विल बी ए डिफरेंस. ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ जा रहा है. देखिए पाल्स रेट अलग होने में ये दोनों के अंदर एक गैप आ जा रहा है. Again it will be trip in the normal condition. Although it has been synchronized with the real time, but pulse sending का rate भी अलग होगा तो अब भी there will be difference in the current. Current image में difference आ जाएगा and it will be trip. तो image का जो pulse है same time में same magnitude का same pulse को भेजना पड़ेगा both end में. तो इसीलिए दोनों साइड का जो लाइन डिफरेंशियल रिले है it should be same make and same model. Otherwise it will be non-functioning. And one thing more I would like to add, for line differential protection with backup distance protection, जो माध्यम होगा that is only OPW. ये PLCC का जो माध्यम में line differential protection will not work. Line differential protection only काम करेगा जो लाइन में OPW है. तो OPW नहीं होगा तो line differential relay with backup protection will not work. So this is the line differential relay working principle with backup distance protection.